Good morning, class. So, in the previous lecture, we have discussed Good about. morning, sir. Good morning. In the previous class, we have discussed about graph theory, in which we have talked about handshaking theorem for directed graph as well as undirected graph, where we are saying that the sum of degree of vertices is 2 times the number of edges for undirected graph, and the sum of in degree of vertices is same as the sum of out degree of vertices, and that is equals to the number of edges in case of directed graph. Okay, so we have discussed about this directed graph. Now we are moving to define the other types of graph. Okay, here, as I have told you, we are concerned with finite graph, and in finite graph we are basically focusing on simple graph. That means the graphs for which there is no loop as well as no multiple or parallel edges. Okay, so here सम स्पेशल सिंपल ग्राफ्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की. ठीक है, सो द कंप्लीट ग्राफ विथ n vertices is denoted by capital K with subscript n. Kn stands for complete graph. ये कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये Kn सिंबल यूज करते हैं. Here n denote the number of vertices and K denote the number of edges. Okay, so that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. Here we are saying Kn is a simple graph. Simple graph means no loops and no parallel edges. Okay, so Kn is the simple graph that contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. So look at this. This is the K1, K2, K3, K4, K5, K6. मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं, ऐसे ही आप K7, K8 जो भी चाहो ड्रॉ कर सकते हो. The thing is that the point that we have to remember here is, in case of Kn graph, the number of vertices is n. Kn में जो n है that will represent the number of vertices. जैसे कि K1 में एक वर्टेक्स है, K2 में 2 वर्टेक्स है, K3 में 3 वर्टेक्स है, K4 में 4 वर्टेक्स है, K5 में 5 है, K6 में 6 है, एंड सो ऑन. ओके, तो अगर कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो कंप्लीट ग्राफ के केस में नंबर ऑफ जो वर्टिसेज हैं वो हमेशा n होंगे. नहीं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस? तो K1 ग्राफ में देखो 0 एज, K2 में 1 एज, K3 में 3 एज, K4 में 6 एज, K5 में कितनी है? इट इज 10 एजेस. काउंट करना है इसको. तो 5 तो ये बाहर आपको दिख रहे हैं, अंदर में 6, 7, 7, ये 8 और ये 9 और ये 10. टोटल 10 एजेस हैं इसमें. ठीक है, ऐसे ही K6 में आप काउंट करोगे तो K6 में नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 15, 15. 6 बाहर है और 9 अंदर है. ठीक, तो therefore here we are defining that the number of edges will be always n into n minus 1 by 2. Kn graph will always consist of n vertices and n into n minus 1 by 2 edges.
because there is an edge between each pair of vertices. ठीक है. Now we can verify handshaking theorem here, क्योंकि अगर हम डिग्री की बात करें, है ना, डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री कितना है, तो K1 ग्राफ में वर्टेक्स का डिग्री 0 है, K2 ग्राफ में 2 वर्टिसेज हैं और दोनों का डिग्री कितना है 1, K3 ग्राफ में 3 वर्टिसेज है, तीनों का डिग्री कितना है 2, K4 ग्राफ में 4 वर्टिसेज हैं, कितनी डिग्री है वर्टिसेज की, व्हाट इज द डिग्री फॉर द वर्टिसेज इन K4 ग्राफ, एनीवन? Astha, it is 3, not 4. 1, 2, 3, 3 edges. 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 हर एक वर्टेक्स से जो इंसिडेंट एजेस हैं वो क्या है 3 है ना. तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 3. ऐसे ही K5 के लिए वर्टिसेस का डिग्री कितना है 4. K6 में वर्टिसेस का डिग्री कितना है 5. ठीक है. तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी Kn ग्राफ में जो वर्टिसेज का डिग्री होगा वो हमेशा n-1 होगा. इज इट सो? किसी भी Kn ग्राफ में जो वर्टिसेज हैं उसका जो डिग्री है वो हमेशा n-1 होगा. K1 में डिग्री 0 है, K2 में डिग्री 1 है, K3 में डिग्री 2 है, K4 में डिग्री 3 है एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से Kn में डिग्री क्या होगा n-1 और नंबर ऑफ वर्टिसेज कितनी है n. तो सम ऑफ डिग्री क्या हो गया n into n-1 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2 times c ड्यू टू handshaking theorem. So therefore the number of edges will be n into n-1 by 2. Got this? So by this way we have defined complete. आपने ये जो लिखा है n into n-1 is equals to 2. No. So now is it visible to you? Yes sir. Okay. तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ग्राफ, जिसमें मैंने बताया कि Kn ग्राफ जो है इसको हम Kn से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेज है, नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो n into n-1 by 2 होगा और जो डिग्री ऑफ वर्टिसेज है वो हमेशा n-1 होगी. ठीक है. तो दिस इज अबाउट कंप्लीट ग्राफ. द नेक्स्ट वन इज साइकिल्स. दिस इज अनदर kind of simple graph. This is represented by Cn. ओके, साइकिल्स ग्राफ को हम Cn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी.
यहाँ पे n जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो Cn stands for a cycle graph of n vertices. Okay. Now what we are saying, the edges, it will have edges v1 v2 v2 v3 v3 v4 and so on, vn minus 1 vn and vn v1. तो दिस इज कॉल्ड साइकिल. साइकिल मीन्स क्लोज्ड लूप. ठीक है. तो देयरफॉर यहाँ पे जो n की वैल्यू ली है हमने 3 ली है, क्योंकि आप दो वर्टिसेस के साथ साइकिल ड्रॉ नहीं कर सकते. सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपके पास दो एंड पॉइंट्स हैं तो उसको हम साइकिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर आपको लूप लेना है तो उसके लिए कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब वर्टिसेज है. ठीक है. क्योंकि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो आप इसके हेल्प से आप क्लोज्ड लूप नहीं बना सकते, साइकिल नहीं ड्रॉ कर सकते. इफ वी आर नॉट अलाउिंग मल्टीपल एजेस और लूप्स, तो सिंपल एज जो होगा वो क्या होगा, ऐसे ही तो कनेक्ट होगा. देयर इज नो एनी अदर वे बाय विच वी कैन मेक इट टू बी अ साइकिल. ठीक है. लेकिन यही अगर 3 पॉइंट्स हैं यानी कि 3 वर्टिसेज हैं, तब आप इसको साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट विल बी क्लोज लूप. यही मैंने बताया कि अगर 3 वर्टिसेज हैं तो v1 v2 से कनेक्टेड होगा, v2 v3 से कनेक्टेड होगा, v3 v1 से कनेक्टेड होगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. ओके. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज साइकिल, जिसको हम Cn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होती है, यानी कि हम C1 ड्रॉ नहीं कर सकते, C2 ड्रॉ नहीं कर सकते. तो वी कैन ड्रॉ C3 C4 C5 C6 C7, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस टू. ठीक. ड्रॉ करने में हमें ध्यान नहीं रखना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो n होंगी, और एजेस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, पहला दूसरे से, v1 v2 से, v2 v3 से, v3 v4 से एंड सो ऑन. लास्ट वाला जो है फिर v1 से कनेक्टेड होगा. ठीक है. तो ये एक तरह से साइकिल बन जाएगा. तो जो इसका ग्राफ है मैंने कुछ ड्रॉ कर रखे हैं हियर. दिस इज C3 C4 C5 C6 है ना. C7 ड्रॉ करना हो तो आपको 7 पॉइंट्स यानी कि 7 वर्टिसेस लेने पड़ेंगे और उसको ड्रॉ कर लोगे आप. ठीक. C8 कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो. तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. अगर आप Cn ग्राफ देखो तो नंबर ऑफ वर्टिसेस तो ठीक है n हो गई, C3 में 3 वर्टेक्स है, C4 में 4 वर्टेक्स है, C5 में 5 वर्टेक्स है, C6 में 6 वर्टेक्स है, ऐसे ही C7 में 7 होंगे एंड सो ऑन. ठीक है. नंबर ऑफ एजेस की बात कर लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितनी है, किसी भी Cn ग्राफ में जो नंबर ऑफ एजेस होंगी वो क्या होंगी. तो देखो C3 में कितनी एजेस है, 3. C4 में कितनी एजेस है, 4. C5 में कितनी एजेस है, 5. C6 में 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो therefore for Cn graph the number of vertices will be n, the number of edges will be 1. What about degree? डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, 2. तो इट इज ऑलवेज 2. कोई सा भी आप Cn ग्राफ ले लो उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री हमेशा 2 होगी. ठीक है. देखो इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, इसमें देखो इसमें भी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इसमें देखो इसमें भी सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 है, और इसमें देखो आप तो इसमें भी सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 है. तो सम ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, तो सम ऑफ डिग्री क्या हो गया 2 टाइम्स n, और ये इक्वल होता है किसके, 2 टाइम्स e के, ड्यू टू हैंडशेकिंग थ्योरम. एंड दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एजेस विल बी n. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नंबर ऑफ एजेस विल बी n. So by this way we can verify this handshaking theorem for the cycles. ठीक है. So that's why I have written that for any undirected graph the sum of degree of vertices is always 2 times the number of edges. Got it? तो ये साइकिल्स थे जिसको हम Cn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर आपको दिया जाता है कि ड्रॉ दिस साइकिल, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. आपको ध्यान जो रखना है वो नंबर ऑफ वर्टिसेज n होंगी Cn में, और हर एक वर्टेक्स जो होगा
वो सभी वर्टिसेस अगले वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। जैसे C1 में, C3 में इस वर्टेक्स को इससे कनेक्ट किया, इस वर्टेक्स को इससे कनेक्ट किया, इस वर्टेक्स को फिर वापस पहले से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हर एक वर्टिस की डिग्री 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेज n होनी चाहिए और नंबर ऑफ एजेस n होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी Cn को ड्रॉ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज दैट इज विल्स। विल्स के लिए हम WN यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपको विल्स ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हम साइकिल्स यानी कि CN ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एंड वी हैव टू टेक वन वर्टेक्स इनसाइड एंड कनेक्ट इट टू ऑल अदर वर्टिसेस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस? In order to draw WN, we will draw CN and then take a vertex inside and connect it to all other vertices. ठीक है, जैसे आपको अगर W3 ड्रॉ करना है तो आप C3 ड्रॉ करोगे, W4 ड्रॉ करना है तो आप C4 ड्रॉ करोगे। ठीक है, एंड सो ऑन। लुक एट दिस। W3 के लिए हमने C3 लिया, W4 के लिए हमने C4 लिया, W5 के लिए हमने C5 लिया, W6 के लिए हमने C6 लिया, और फिर हमें एक वर्टेक्स इनसाइड लेना है और उस वर्टेक्स को सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर देना है। एक वर्टेक्स इनसाइड लेना है, सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर देना है। एक वर्टेक्स इनसाइड लिया, सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ WN ग्राफ। ओके, अगर हम इस WN ग्राफ की बात करें तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? WN में कितनी वर्टिसेस हैं? इट इज ऑलवेज n+1। n तो पहले से Cn के लिए, और एक हमने एडिशनल वर्टेक्स लिया इनसाइड, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो गई? n+1। W3 में 4 वर्टेक्स हैं, W4 में 5 वर्टेक्स है, W5 में 6 वर्टेक्स हैं, W6 में 7 वर्टेक्स हैं, एंड सो ऑन। ओके, नंबर ऑफ एजेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एजेस क्या है? तो देखो W3 में कितनी एजेस हैं? 3 तो बाहर वाली और 3 अंदर, कितनी है? 6। W4 में कितनी है? 4 बाहर थी और 4 अंदर हो गई, 8। W5 में कितनी है? 5 बाहर से थी और 5 फिर अंदर हो गई, कितनी हो गई? 10। ऐसे ही W6 के लिए 12। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ WN है तो नंबर ऑफ एजेस हमेशा क्या होगा? 2n। 2n। ठीक है, गॉट दिस? Yes, sir. लेट मी टॉक अबाउट डिग्री। अगर हम डिग्री की बात करते हैं वर्टिसेस की, तो क्योंकि हमने साइकिल से ड्रॉ किया है तो ये तो फिक्स है कि सभी वर्टिसेस का डिग्री 2 होगा। कितने वर्टिसेस का? n वर्टिसेस का। WN में n वर्टिसेस का डिग्री तो 2 होगा, और जो एडिशनल वर्टेक्स है उसका डिग्री n होगा। सर 2 कहाँ 3 हो रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट 2, एक तो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सॉरी, दिस इज नॉट 2, दिस इज 3, दिस इज 3। सभी वर्टिसेस का डिग्री 3 होगा, और जो हमने एडिशनल वर्टेक्स लिया है उसका डिग्री n होगा। ठीक है, देखो जैसे ये है, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, और एडिशनल का n है क्योंकि W3 है तो 3 है। ऐसे ही सभी का 3 है बाहर वाले का, और अंदर जो है उसका डिग्री 4 है। सभी का डिग्री 3 है और अंदर वाले का 5 है। सभी का डिग्री 3 है और अंदर वाले का 6 है। 6 वर्टिसेस है ना इससे, ठीक, सॉरी 6 एजेस हैं, तो इसलिए इसका डिग्री 6 हो गया। ठीक, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज अगर हम करें तो n वर्टिसेज का डिग्री, सॉरी, हाँ, n वर्टिसेज का डिग्री 3 है और 1 वर्टेक्स का डिग्री n है, तो ये कितना हो गया टोटल? 3 into n plus 1 into n, that is 4n, and 4n will be equals to 2 times e. Sum of degree of vertices is 2 times the number of edges, and therefore number of edges will be 2n.
2 से ये कैंसिल हो गया तो 2n. ओके, तो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट द degree the degree for the vertices will be 3 and the degree for the additional vertex will be always n. WN ग्राफ में n+1 वर्टिसेज होंगी जिसमें n वर्टिसेज का डिग्री 3 होगा और 1 वर्टेक्स का डिग्री n होगा. दिस इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, तो ये हमने रिलेशनशिप बताया आपको कि कितनी वर्टिसेज होंगी, कितनी एजेस होंगी, वर्टिसेज का डिग्री क्या होगा फॉर द केस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, साइकिल्स एंड व्हील्स. ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, आगे हम इसको यूज करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप. दिस ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज n क्यूब्स. ठीक है, n क्यूब्स या हाइपर क्यूब भी बोलते हैं. तो हाइपर क्यूब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इसको हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, QN से. जैसे हम साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं CN से, व्हील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम WN से, कंप्लीट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम KN से. तो ऐसे ही हम क्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं QN से. Now, what is this? So here we are saying it is a graph that has vertices representing the 2 to power n bit strings of length n. तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. What is the meaning of this 2 to power n bit strings of length n? ये पॉइंट क्या है? तो अगर मैं बोलूं आपसे कि वन लेंथ की बिट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, तो वन लेंथ की बिट स्ट्रिंग होती है 0 और 1. बाइनरी की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, वन लेंथ बिट स्ट्रिंग क्या होती है, 0 और 1. वन लेंथ क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर है, और बिट स्ट्रिंग है क्योंकि बिट क्या होता है, दैट इज आइदर 0 और 1. ओके, टू लेंथ बिट स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो टू लेंथ बिट स्ट्रिंग क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1. टोटल 4 वैल्यूज. ठीक है, थ्री लेंथ अगर बोला जाए तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1. टोटल 8 bit strings of length 3. So that's why here we are saying that 2 to power n bit strings of length n. तो अगर 1 लेंथ का है तो 2 बिट स्ट्रिंग होगी, 2 लेंथ का है तो 4 बिट स्ट्रिंग होगी, 3 लेंथ का है तो 8 बिट स्ट्रिंग होगी, 4 लेंथ का है तो 16 बिट स्ट्रिंग होगी. क्योंकि इन 8 वैल्यूज को पहले एक बार 0 लगा के लिख लो और फिर एक बार 1 लगा के लिख लो. तो 4 टाइम 0 से लेके 4 टाइम 1 तक टोटल 16 बिट स्ट्रिंग्स होंगे. ओके, तो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट QN graph will always have 2 to power n number of vertices. ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगी, 2 to power n QN ग्राफ में. क्योंकि n जो है वो बता रहा है कि n इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द बिट स्ट्रिंग. तो वन लेंथ की टोटल 2 to power n बिट स्ट्रिंग होगी, और इस वजह से 2 to power n वर्टिसेज लेने होंगे क्योंकि हर एक वर्टेक्स एक बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है QN ग्राफ में. ठीक है, दूसरा इसमें यह बताया गया है कि दो वर्टिसेज एडजेसेंट हैं. हियर वी आर सेइंग टू वर्टिसेज आर एडजेसेंट if and only if the bit strings that they represent differ in exactly one bit position. Now, what is the meaning of this? तो अगर हम Q1 ग्राफ की बात करें तो 0 और 1 एडजेसेंट होंगे क्योंकि दोनों में एक बिट पोजीशन का चेंज है. अगर हम Q2 ग्राफ की बात करें तो 0 0 के एडजेसेंट क्या होगा, 0 1 हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही इससे
एक बिट पोजीशन पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ इस बिट पे 0 है तो इस बिट पे 1 हो गया और दूसरा बिट सेम है। इसी तरीके से इस बिट पे 0 है तो इस बिट पे 1 हो गया, तो एक बिट का चेंज है। लेकिन 0 0 और 1 1 ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में 2 बिट पोजीशन का चेंज है। ऐसे ही 0 1 और 1 0 ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में 2 बिट पोजीशन का डिफरेंस है। यस, हैव यू गॉट दिस? दो चीजें मैंने बताई आपको कि क्यू एन ग्राफ में हमें 2 टू पावर n नंबर ऑफ वर्टिसेस लेना है, जहां पे हर एक वर्टेक्स जो होगा एक n लेंथ के बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। दूसरा, जो वर्टिसेज हैं वो एडजेसेंट तभी होंगी जब करस्पॉन्डिंग बिट स्ट्रिंग जो है एक बिट पोजीशन पे चेंज हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट्स? Anyone having queries in this, you can ask. क्यू एन में एन जो है वो ये बता रहा है कि आपको कितने लेंथ का बिट स्ट्रिंग लेना है। तो अगर आपको एन लेंथ का बिट स्ट्रिंग लेना है तो टोटल कितनी बिट स्ट्रिंग होगी एन लेंथ की? दैट इज 2 टू पावर एन। जैसे 1 लेंथ की 2 बिट स्ट्रिंग होगी, 2 लेंथ की 4 बिट स्ट्रिंग होगी, 3 लेंथ की 8 बिट स्ट्रिंग होगी, 4 लेंथ की 2 टू पावर 4 यानी 16 बिट स्ट्रिंग होगी, 5 लेंथ की 2 टू पावर 5 दैट इज 32 बिट स्ट्रिंग होगी। तो क्यू एन ग्राफ में हमेशा 2 टू पावर एन नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे, क्योंकि हर एक वर्टेक्स जो है एक बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज। दूसरा, मैंने बताया कि दो वर्टिसेज एडजेसेंट तभी होंगे जब दोनों में ही जो करस्पॉन्डिंग बिट स्ट्रिंग है वो एक बिट पोजीशन पे चेंज हो रहा हो। ठीक, तो लेट मी ड्रॉ Q1, Q2, Q3 and so on. This is Q1, then Q2 and then Q3. Q1 का मतलब 1 लेंथ की बिट स्ट्रिंग लेना है, और 1 लेंथ की बिट स्ट्रिंग क्या होती है? 0 और 1। तो एक वर्टेक्स 0 रिप्रेजेंट करेगा, एक वर्टेक्स 1 रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट होंगे क्योंकि दोनों में ही एक बिट पोजीशन का डिफरेंस है। एक जगह 0 है, एक जगह 1 है। ऐसे ही Q2 ग्राफ में 2 टू पावर 2 यानी कि 4 वर्टिसेज होंगे, क्योंकि हम 4 बिट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हम एडजेसेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो 0 0 के एडजेसेंट क्या है? 1 0 है, 0 1 है, लेकिन 0 0 के एडजेसेंट 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें और इसमें 2 बिट पोजीशन का चेंज हो रहा है। ऐसे ही 0 1 के एडजेसेंट 1 0 नहीं है। देखो 0 1 और 1 0 के बीच में कोई एज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में 2 बिट पोजीशन का चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो MSB 0 है, यहाँ MSB 1 है, यहाँ LSB 0 है, यहाँ LSB 1 है। तो दोनों बिट पोजीशन पे क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो दो वर्टिसेज एडजेसेंट तभी होंगी जब दोनों में केवल एक बिट पोजीशन का चेंज हो। ओके, अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम क्यू एन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका एक तरीका है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर जब भी हमें क्यू एन ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं? दो क्यू एन माइनस वन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको Q2 ड्रॉ करना है तो 2 बार Q1 ड्रॉ कर लो, 2 बार Q1 ड्रॉ कर लो सेम सीक्वेंस के साथ। तो ये 0 है तो ये 1 हो गया। 2 बार हमने Q2 को ड्रॉ कर लिया, एक नीचे वाला हो गया और एक ये ऊपर। और उसके बाद हम क्या करते हैं? एक में हमने 0 प्रीफिक्स कर दिया और एक में हमने 1 प्रीफिक्स कर दिया, और फिर हम एडजेसेंट कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो 0 0 है, ये 1 0 है, ये एडजेसेंट होगा। ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ये 0 1 है, ये 1 0 है, एडजेसेंट नहीं होगा। ये 0 0 है, ये 1 1 है, एडजेसेंट नहीं होगा। दिस इज व्हाट Q2। तो अगर आपको Q2 ड्रॉ करना है तो 2 बार Q1 ड्रॉ करो,
एक में 0 प्रीफिक्स करो, एक में 1 प्रीफिक्स करो और एडजेसेंट कनेक्ट कर दो। एडजेसेंट के लिए कंडीशन वही है कि दोनों के बिट स्ट्रिंग में एक बिट पोजीशन का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको Q3 ड्रॉ करना है तो 2 बार Q2 ड्रॉ कर लो। तो एक Q2 ये हो गया, लेट अस से दूसरा Q2 मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं यहां पे। और सेम सीक्वेंस से लिख लो इसको। तो यहाँ पे क्या है 1 0, तो 1 0 लिख लिया। ये वाला क्या है 0 0, तो 0 0 लिख लिया। ये वाला क्या है 0 1, और ये वाला क्या है 1 1। फिर मैंने क्या बताया, पहले वाले में 0 प्रीफिक्स कर लो, तो सब में 0 प्रीफिक्स कर लिया। और दूसरे वाले में 1 प्रीफिक्स कर लो, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। और फिर एडजेसेंट कनेक्ट कर दो। तो देखो 000 है, ये 100 है, एडजेसेंट होगा, एक बिट पोजीशन का डिफरेंस है। ये 010 है, ये 110 है, एक बिट पोजीशन का डिफरेंस है। 001 101, एक बिट पोजीशन का डिफरेंस है। 011 111, एक बिट पोजीशन का डिफरेंस। तो दिस इज योर Q3। अभी इसके अलावा और कोई कनेक्ट नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो किसी भी दो को लेके। ओके, ऐसे ही अगर आपको Q4 ड्रॉ करना है तो Q3 को 2 बार ड्रॉ कर लो सेम सीक्वेंस के साथ। एक में 0 प्रीफिक्स कर लो, एक में 1 प्रीफिक्स कर लो, फिर एडजेसेंट कनेक्ट कर दो। यस, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस यू कैन आस्क। क्यू एन ड्रॉ करने के लिए हम 2 टाइम्स Qn-1 ड्रॉ करते हैं। एक में 0 प्रीफिक्स करते हैं, एक में 1 प्रीफिक्स करते हैं, और फिर एडजेसेंट को कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस है। ओके, चलो अब अगर हम नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो मैंने आपको बता दिया कि क्यू एन ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा क्या होंगी 2 टू पावर n। नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया 2 टू पावर n। नंबर ऑफ एजेस क्या होगा कितनी एजेस होंगी? तो Q1 में 1 एज है, Q2 में 4 एजेस है, Q3 में 12 एजेस है कि नहीं? 4 पहले थी, 4 हमने दूसरे में ले लिया, 8, और 4 हमने बाद में कनेक्ट किया, टोटल 12, 12। तो क्या कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर हम n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें नंबर ऑफ एजेस को, तो कैसे कर सकते हैं? Q1 में 1 है, Q2 में 4 है, Q3 में 12 है। अच्छा ये बताओ डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होंगी? चलो अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप मुझे ये बताओ डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होंगी? Q1 में डिग्री कितनी है वर्टिसेस की? 1। 1 Q2 में वर्टिसेस की डिग्री कितनी है? 2 2। Q3 में वर्टिसेस की डिग्री कितनी है? 3 आप कोई सा वर्टेक्स ले लो, सभी की डिग्री 3 होगी। ठीक है, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 टू पावर n है, और हर एक वर्टेक्स की डिग्री हमेशा क्या है? n है। क्या है? n। Qn में वर्टिसेस की डिग्री हमेशा क्या होती है? n होती है। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 टू पावर n, और हर एक वर्टिस की डिग्री n, तो सम ऑफ डिग्री क्या हो गया, n इंटू 2 टू पावर n. यस और नो? यस सर। एक वर्टेक्स की डिग्री n है और टोटल 2 टू पावर n वर्टिसेज हैं, तो n को हमें 2 टू पावर n टाइम सम करना पड़ेगा. तो दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू 2 टू पावर n, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ड्यू टू हैंडशेकिंग थ्योरम, 2 into e. That's why the number of edges will be n into 2 to power n minus 1. या n by 2, तो minus 1 किसको लिख सकते हैं. let me verify. अगर हम q1 के लिए देखें तो 1 into 2 to power 1 minus 1, that is 1 into 2 to power 0, and that is 1. q2 के लिए देखें तो 2 into 2 to power 2 minus 1, और 2 into 2 to power 2, सॉरी ये हो गया 2 into 2 to power 2 minus 1, यानी कि 2, ये क्वांटिटी हो गई 2, 2 minus 1 माने 1, और 2 to power 1 यानी कि 2, तो 2 into 2 4, इसलिए नंबर ऑफ एजेस कितनी है 4. अगर हम Q3 को देखें तो 3 into 2 to power 3 minus 1, यानी कि 3 into 2 to power 2, and that is 3 into 4, and that is 12. Got it? So by this way, we have defined that the number of edges will always be equals to n into 2 to power n minus 1, and the degree of vertices will always be equals to n, and number of vertices will be 2 to power n. So by this, we have defined the relationship for the number of vertices, number of edges, and the degree of vertices for this 4 special kinds of simple graph: Kn, then Cn, then Wn, and then Qn. ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ, साइकिल्स, व्हील्स एंड एन क्यूब्स. ठीक है, तो ये 4 हमने डिस्कस कर लिए. यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, देन यू कैन आस्क. तो ये वही लिखा हुआ है, कैसे हमने ड्रॉ किया. क्यू एन को ड्रॉ करने के लिए 2 बार हमें क्यू एन माइनस 1 या क्यू एन प्लस 1 ड्रॉ करने के लिए 2 बार हमें क्यू एन ड्रॉ करना होता है. एक में 0 प्रीफिक्स करते हैं, एक में 1 प्रीफिक्स करते हैं, और फिर एडजेसेंट को कनेक्ट कर लेते हैं. तो वही प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है. ठीक, तो देन कम्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ. ठीक है, ये सभी जो है ये कोई भी एक्सक्लूसिव टाइप नहीं है, तो इसलिए मैंने ये टर्म यूज नहीं किया कि टाइप्स ऑफ ग्राफ. वी आर जस्ट सेइंग स्पेशल सिंपल ग्राफ्स. ये एक्सक्लूसिव टाइप्स नहीं है, यानी एक ही ग्राफ जो रेगुलर है वो साइकिल भी हो सकता है, वो व्हील्स भी हो सकता है, या कोई अगर साइकिल है तो वो कंप्लीट ग्राफ भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज द टर्म टाइप्स ऑफ ग्राफ फॉर दिस. वी हैव यूज जस्ट सम स्पेशल सिंपल ग्राफ्स. ठीक है, तो ये कोई स्पेशल मतलब कि सिंपल ग्राफ्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है. ठीक, ओके. तो रेगुलर ग्राफ की बात कर लेते हैं. तो रेगुलर ग्राफ इज द सिंपल ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स ऑफ डिग्री k. ठीक है, रेगुलर ग्राफ इज द सिंपल ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स ऑफ डिग्री k, and this is denoted by k regular graph. इसको हम बोलते हैं k रेगुलर ग्राफ. जैसे कि जो साइकिल्स हैं, आपको पता है कि साइकिल में क्या होता है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है, एंड दैट इज व्हाट 2. तो साइकिल्स विल बी 2 रेगुलर ग्राफ. ओके, मैंने आपको क्या बताया रेगुलर ग्राफ के लिए. रेगुलर ग्राफ वो सिंपल ग्राफ है जिसमें सभी वर्टिसेस की डिग्री एक कांस्टेंट हो. लेट अस से k, मतलब सेम कांस्टेंट हो, सेम वैल्यू, सभी की डिग्री सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो उस ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं, यानी के रेगुलर ग्राफ बोलते हैं अगर के डिग्री है सभी का. तो जैसे सी एन ग्राफ है, तो सी एन जो होगा इसको हम 2 रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं क्योंकि सभी वर्टिसेस का डिग्री क्या है 2. ऐसे ही जो कंप्लीट ग्राफ हमने पढ़ा, तो कंप्लीट ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि सभी वर्टिसेस की डिग्री कितनी होती है, हमेशा n-1. कंप्लीट ग्राफ के एन में
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि के एन ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेज एन होती है, नंबर ऑफ एजेस क्या होती है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और हर एक वर्टिस की डिग्री क्या होती है एन माइनस वन। क्योंकि सभी वर्टिसेज की डिग्री एन माइनस वन है, तो दैट्स वाई कंप्लीट ग्राफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन माइनस वन रेगुलर ग्राफ। जैसे K3 की बात करें तो वो 2 रेगुलर ग्राफ है, K4 की बात करें तो ये 3 रेगुलर ग्राफ है, K5 की बात करें तो वो 4 रेगुलर ग्राफ है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही जो n क्यूब्स होता है वो कितने रेगुलर ग्राफ होगा बताओगे? यस, n क्यूब्स को अगर हमें रेगुलर ग्राफ बोलना हो तो कौन सा रेगुलर ग्राफ होगा? क्या हम कह सकते हैं रेगुलर ग्राफ? Qn। बताओ। Sir, can you repeat your question, please? जो Qn ग्राफ है, इज इट रेगुलर? QN graph regular. ग्राफ हाँ रेगुलर तभी होता है जब सभी वर्टिसेस की डिग्री सेम हो। हाँ, उसमें सारे वर्टिसेस की सेम ही तो थी। कितनी थी? जो 2 की पावर 3 वाला था उसमें सारे वर्टिसेस की डिग्री 3 थी, जिसमें नहीं 2 की पावर नहीं, क्यू एन ग्राफ के लिए जब हमने समराइज किया, अभी जस्ट ये समराइज किया मैंने, क्यू एन ग्राफ में सभी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होती हैं 2 टू पावर एन, नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है एन इंटू 2 टू पावर एन माइनस वन, और सभी वर्टिसेस की डिग्री कितनी होती है एन। एन। तो क्यू एन ग्राफ इज व्हाट? एन रेगुलर ग्राफ, दैट्स इट। वैसे सही सर। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का सिंपल मीनिंग यही है कि सभी वर्टिसेस की डिग्री अगर सेम है तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज रेगुलर ग्राफ। डब्ल्यू एन जो है वो रेगुलर ग्राफ नहीं होता है क्योंकि सभी वर्टिसेस की डिग्री उसमें सेम नहीं होती है, क्योंकि एन वर्टिसेस की डिग्री वहां पे 3 होती है और एक वर्टिस की डिग्री एन होती है, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंक्लूड दैट डब्ल्यू एन इज ए रेगुलर ग्राफ। लेकिन सी एन है, उसमें सभी वर्टिसेस की डिग्री 2 थी, इसलिए वो रेगुलर ग्राफ है। के एन है, उसमें सभी वर्टिसेस की डिग्री एन माइनस वन थी, इसलिए रेगुलर ग्राफ है। क्यू एन है, सभी वर्टिसेस की डिग्री एन होती है, इसलिए वो रेगुलर ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ग्राफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर टुडे, दैट इज बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, बाइपर्टाइट ग्राफ का मतलब ये होता है, पहले डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूं, आप इसको जरा रीड कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हियर वी आर सेइंग अ सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड बाइपर्टाइट इफ इट्स वर्टेक्स सेट, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, कैन बी पार्टीशनड इनटू टू disjoint sets v1 and v2 such that every edge in the graph connects a vertex in v1 and a vertex in v2। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? किसी भी ग्राफ को अगर हम दो सेट ऑफ वर्टिसेस में डिवाइड कर सकें, मतलब एक ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड करना है। कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों सेट जो है डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी एक वर्टेक्स किसी एक सेट को बिलोंग करना चाहिए, दोनों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो वर्टिसेज एक सेट में होंगे वो एडजेसेंट नहीं होंगे, जो वर्टिसेज सेम सेट में हैं वो एडजेसेंट नहीं होंगे। यानी वर्टेक्स जो है अगर सेम सेट में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए यहां लिखा हुआ है नो एज इन जी, जी मतलब ग्राफ जी, connects either two vertices in v1 और two vertices in v2। यानी कि जो दो आपने सेट लिया v1 और v2, तो v1 में कोई भी ऐसा दो वर्टिसेस नहीं होना चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हो, या v2 में ऐसे कोई दो वर्टेक्स नहीं होने चाहिए जो आपस में कनेक्टेड हो। व्हाट द पॉइंट? प्रॉब्लम क्या है?
जो भी ग्राफ आपको दिया है उस ग्राफ के वर्टिसेस को दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करना है, और एक सेट के अंदर जो भी वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए. If it is possible, then the graph is called to be as bipartite graph. BI, बाई का मतलब यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम 2 की बात कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड बाइपर्टाइट ग्राफ. तो बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होगा? बाइपर्टाइट ग्राफ इज a graph in which the set of vertices can be divided into two disjoint set v1 and v2 such that no two adjacent vertices are in the same set. या इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन v1 एंड अ वर्टेक्स इन v2. एक वर्टेक्स v1 का होगा और एक वर्टेक्स v2 का होगा. जितनी भी एजेज होंगी वो इस तरह से कनेक्टेड होंगी. कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों वर्टिसेज v1 की हो या दोनों वर्टिसेज v2 की हो. यानी कि इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो वर्टिसेज सेम सेट के कनेक्टेड नहीं होने चाहिए. गॉट दिस? मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं आपको. ये आपको एजेस दिख रही है क्या इसमें? आई Yes, थिंक sir. नहीं दिख रही होंगी, लाइट है Sir, बहुत. करिए। ये पे ड्रॉन है, पहले से ड्रॉन है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना. ये पहले से है. सर ये दिख रही हैं। दिख रही हैं? ओके, दैट्स ओके देन. तो ये देखो आप, ये मैंने 3 ग्राफ लिए हैं. लेट अस से इसका नाम हमने दे दिया G1, और इसका नाम दे दिया हमने G2, और इसका नाम दे दिया हमने G3. ये 3 ग्राफ हमने लिया. ठीक है. अब लेट मी टॉक अबाउट G1. G1 में देखो आप, एक वर्टेक्स सेट हमने ये लिया है और एक वर्टेक्स सेट हमने ये लिया है. आप देखो कोई भी एज जो है, दो वर्टिसेस जो कि सेम सेट में है उसको कनेक्ट नहीं कर रहे. यानी ये इससे कनेक्टेड नहीं है, या इससे कनेक्टेड नहीं है, या इससे कनेक्टेड नहीं है. ये आपस में कोई भी कनेक्टेड नहीं है. ऐसे ही ये आपस में कोई भी कनेक्टेड नहीं है. जितनी भी एजेज हैं वो एक वर्टेक्स इससे ले रहा है और एक वर्टेक्स इससे ले रहा है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टू बी एज बाइपर्टाइट ग्राफ. इसी तरीके से इसमें भी है. ये देखो, हमने 3 वर्टिसेस ली हैं इस तरफ और 3 वर्टिसेस ली हैं हमने इस तरफ, और कोई भी एज दो वर्टिसेस सेम सेट को कनेक्ट नहीं कर रहा. जबकि क्या कर रहा है, कोई भी एज जो है एक वर्टेक्स इस सेट से ले रहा है और एक वर्टेक्स इस सेट से ले रहा है. द सेम इज फॉर हियर ऑल्सो. रेड वाले को हम एक सेट में रखेंगे और ब्लैक वाले को हम दूसरे सेट में रख रहे हैं. तो कभी भी रेड वाले को कनेक्ट नहीं कर रहा है. रेड वाला हमेशा ब्लैक को कनेक्ट कर रहा है. जितनी भी एजेज है उन एजेस का एक पॉइंट रेड है तो दूसरा पॉइंट ब्लैक है. आप देख लो, आप इस कलर से भी समझ सकते हो. जैसे ये एज है तो एक ब्लैक है एक रेड है. ऐसे ही ये एज है तो एक ब्लैक है एक रेड है. ये एज है, एक ब्लैक है एक रेड है. ये एज है, एक ब्लैक है एक रेड है. ठीक है, एंड सो ऑन. तो दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइपर्टाइट ग्राफ. बाइपर्टाइट ग्राफ का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी वर्टिसेज हैं ग्राफ की, उसको हमें दो सेट में डिवाइड करना है जिससे कि सेम सेट के वर्टिसेज आपस में कनेक्टेड ना हो. ओके. तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट बाइपर्टाइट. आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव लेफ्ट. Okay, we will continue this in the next class. Anyone having any doubts up to this, you can ask. सर इसमें डिग्री वगैरह नहीं निकालनी होती है? नहीं, हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं कि बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं. ठीक है. अभी हम उसकी बात करेंगे कि डिग्री क्या होगा या एजेस क्या होंगी. ठीक है, तो वो सब हम अभी इसके बाद बात करेंगे. अभी मैंने आपको केवल ये बताया कि कोई ग्राफ देख के अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि ये ग्राफ बाइपर्टाइट है नहीं, तो उसके लिए आपको करना क्या है. तो आपको उस ग्राफ की वर्टिसेज को दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करना है जिससे कि सेम सेट में वर्टिसेज कनेक्टेड ना हो. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इतना समझ में आ गया तो दैट्स ओके. देन इट विल बी क्लियर व्हाट इज बाइपर्टाइट. ओके सर. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव इज टू कि हमें सेट ऑफ वर्टिसेस को स्प्लिट करना है दो सबसेट में.
ठीक है, सच दैट नो टू वर्टिसेज आर एडजेसेंट इन द सेम सेट। ये कंडीशन है बाइपार्टाइट के लिए। So we are stopping here. We will continue this in the next class. Thank you all. Have a nice day.